Morning. Today we will start chapter 2nd of class 8 from trade to territory. It is from history chapter. If we look at the name of the chapter, that is from trade to territory, it refers to basically to the East India Company. That East India Company comes to India only for trade purpose. But slowly, gradually, East India Company acquired territory in India. How it comes, how company established power in India. This we will see. So, मुगल एम्पायर द ग्रेट मुगल एम्पायर फ्रॉम बाबर टू औरंगजेब उसके बाद लेटर मुगल एम्पायर आते हैं उस समय द लेटर मुगल एम्पायर emperors were very weak. So Aurangzeb was the last of the powerful Mughal ruler. Means there during the time of Aurangzeb, the central power was strong. So India was somewhat united at that time. But after the death of Aurangzeb in 1707, Aurangzeb death in 1707. Many Mughal governors known as Subedar. Subedar means जो सूबा होता था प्रोविंस उसके वो गवर्नर्स होते थे. They used to administer that सूबा known as Subedars. And big zamindars also, they also asserted their authority and established regional kingdoms. In the 7th class, there's a chapter New Kings and Kingdoms. या 18th century political formation. उसमें हम देखेंगे कि after the death of Aurangzeb, like Awadh, Mysore, Marathas, Sikhs, ये सब they became independent. Because the central power was weak, so they asserted their independence. So powerful regional kingdoms emerged in various parts of India. So Delhi could no longer function as an effective center. और साथ पर मतलब औरंगजेब की डेथ के बाद हैपनिंग्स हो रही थी. Powerful regional kingdoms. Second happenings was Europeans were also coming. इनकी अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो first Portuguese, then came Dutch, then came English, and in the last comes France. As you know, Vasco da Gama discovered India in 1498. Vasco da Gama discovered India, and so the Portuguese were the first to landed on the Indian soil. After that, Dutch came, but basically, the English East India Company plus the French company, they tried to gain power in India. So we will limit to only in these two topics, English and the French. Now, why the English and French conflicted with each other? They fought 3 Anglo-Carnatic War. So why the conflict arose? The problem was that all the companies were interested in buying the same thing, like cotton, silk, spices, pepper, cloves. They were in great demands in Europe. And to gain profit is to eliminate rival competitors. English East India Company. In 1600, Queen Elizabeth I gave granting the sole right to trade with the East. English East India Company को Queen Elizabeth ने charter दे दिया to trade with the East. इसका ये मतलब था कि now no other trading group in England could compete with the East India Company. Like only English East India Company would trade with the East. तो एक तरह से monopoly हो गई East India Company की. ये थोड़ा सा important facts है. It is also important for NTSC. The first English factory was set up on the banks of the river Hooghly in, remember this date, 1651. River Hooghly कहाँ है? It is in Bengal. So the first English factory was set up
on the banks of the river in 1651. 1600 में company set up हुई, 1651 में the first English factory was set up. नेक्स्ट टॉपिक इज, अभी तक हमने ये पढ़ा कि हाउ इंग्लिश आए, उन्होंने अपनी जो फैक्ट्रीज थी वो स्टैब्लिश करने लगे, पहले बंगाल में, देन बॉम्बे, मेड्रास, से उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करी. बट द नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, कि ट्रेड कैसे मतलब चेंज इनटू अ बैटल. हम रीजनल पावर्स की सबसे पहले बात करते हैं. बंगाल की, बंगाल बिकेम इंडिपेंडेंट बाय मुर्शिद कुली खान. आफ्टर मुर्शिद कुली खान, द नेक्स्ट रूलर वाज अलीवर्दी खान. दे बोथ वर वेरी पावरफुल. सो देयर वाज अभी तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इन्फ्लुएंट, इसलिए अभी तक इन्होंने एज सच नहीं सोचा थी कि वी वांट टेरिटरी और सम वी शुड कम इनटू द कॉन्फ्लिक्ट विद द नवाब. बट आफ्टर द अलीवर्दी खान, द नेक्स्ट नवाब वाज सिराज दौला. अब व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सिराज दौला. तो सबसे पहले अगर हम असिस्टेंट की बात करें, अलीवर्दी खान हैड 3 daughters. अलीवर्दी खान had no son. Today also, here's एक कॉमन फीचर है कि द सन acquired the father's property. हालांकि आजकल तो बहुत ज्यादा चेंज हो गया, बट ड्यूरिंग दैट टाइम एक बिल्कुल ये होता था कि एल्डर सन शुड सक्सीड द थ्रोन, पर यहाँ तो सन ही नहीं थे. तो 3 daughters थे. तो 3 डॉटर में से जो वन डॉटर का बेटा था, दैट इज सिराजुद्दौला. ही वाज द डॉटर्स सन, मतलब अलीवर्दी खान उसके नाना हुए. तो डिस्प्यूटेड असेशन था. द अदर 2 daughters वर अनॉयड विद सिराजुद्दौला कि नहीं, ये हमारे बेटे को ये थ्रोन मिलना चाहिए. तो डिस्प्यूटेड असेशन ऑफ सिराजुद्दौला, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर. Second is Sirajuddaula was not as powerful as Alivardi Khan. This is another factor. But the main factor is misuse of dastak. Misuse of dastak. अब dastak क्या है? It is free passes. Free passes given to East India Company to trade duty free. मतलब ड्यूटी फ्री करने के लिए आपको कभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गुड्स थे वो अगर एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस में जा रहा है तो दे don't have to give any tax. This is known as dastak. ये बंगाल के नवाब ने दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को. But it is dastak was issued only to the East India Company, not to the servant of the East India Company. We should be clear कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपने ईस्ट इंडिया कंपनी जब कंपनी के गुड्स एक जगह से दूसरी जगह भी जा रहे हैं, they are not required to pay any tax. बट 7 से वो अगर अपने प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं, इफ दे आर डूइंग देयर प्राइवेट ट्रेड, दे हैव टू गिव द टैक्सेस. बट करप्शन था उस समय भी, तो जो 7 थे वो अपने गुड्स भी इसने कंपनी गुड्स कह के विदाउट गिवन एनी टैक्स इधर से उधर ले जाते थे. तो इट्स लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द नवाब ऑफ बंगाल. एक ये मेन डिस्प्यूट भी था. साथ में एक और था फोर्टिफिकेशन ऑफ कैलकटा. बोथ फ्रेंच एंड ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्टिफाई कैलकटा, जो उनकी फैक्ट्री थी इसको फोर्टिफाई करा. तो इट वाज challenging the authority of Sirajuddaula. Sirajuddaula ordered both the company to demolish the fortification. French East India Company obeyed the order of Sirajuddaula, but East India Company refused to demolish the fortification. So it was the field was ready. साथ में एक और बहुत बड़ा कॉज था, that is Mir Zafar. Who was Mir Zafar? Mir Zafar was the commander of Siraj ud Daula's army. Mir Zafar was the commander of Siraj Daula's army. मतलब main जो होता है, after the king he was the head of the army. Mir Zafar comes into an alliance with East India Company. लॉर्ड क्लाइव और मीर जफर में एक अलायंस हो गई, एक सीक्रेट ट्रीटी इनके बीच में हो गई कि मीर जफर वुड हेल्प द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और वुड रिमेन एज अ स्पेक्टेटर इन द फील्ड.
and also promised a huge revenue to the East India Company. And East India Company promised that after the defeat of Siraj-ud-Dawla, Mir Zafar would be given the throne of Bengal. तो एक तरह से करप्शन अभी नहीं, उस समय भी करप्शन था. सो एंड इंटरेस्टिंगली सिराजुद्दौला नोज द ट्रीटी, वो उसको ट्रीटी पता पड़ गई थी, न्यू दैट ट्रीटी ऑफ मीर जफर हैज मेड एन ट्रीटी विथ लॉर्ड क्लाइव. देन आल्सो सिराजुद्दौला दैट डिड नथिंग. उसने फिर भी उसको मीर जफर को कमांडर की पोस्ट से नहीं हटाया. इसलिए हार तो शायद पहले से ही दिख रही थी, क्योंकि जो मेन पार्ट था आर्मी का, सिराजुद्दौला की आर्मी का, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा. सो द बैटल ऑफ प्लासी was fought in 1757. बहुत इंटरेस्टिंग है. जस्ट आफ्टर 100 years 1857 में हुआ था द बैटल ऑफ द 1857 रिवोल्ट. 100 साल पहले जस्ट एक तरह से फाउंडेशन हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्योंकि बंगाल का प्रोविंस जो एक तरह से उनके हाथ में आ गया. सो द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन 1757 बिटवीन Siraj-ud-Dawla's Nawab of Bengal and East India Company with Siraj-ud-Dawla's and with East India Company under the command of Lord Clive. अगर ये देखा जाए तो it was most part of the Siraj-ud-Dawla's armies remained as a spectator. इन्होंने कोई भी एक्चुअल फाइटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा. सिराजुद्दौला, मीर जफर, रायदुल्ला, इन्होंने एज सच सिर्फ एज ए व्यूअर खड़े रहे, स्पेक्टेटर बन के खड़े रहे, उन्होंने फाइट में पार्टिसिपेट नहीं करा. सो एज फोरसीन सिराजुद्दौला फेस डिफीट एंड ईस्ट इंडिया कंपनी वन द बैटल. अगर डिस्ट्रक्शन की बात की जाए तो बहुत बड़ा एक जैसे लड़ाई नहीं थी. ओनली 50 soldiers from the part of East India Company were died, and from the Nawab side only 500 soldiers were died. तो अगर डिस्ट्रक्शन की बात की, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, बट अगर हम कॉन्सिक्वेंस की बात की जाए तो द सिग्निफिकेंस वाज वेरी ग्रेट. Significance was because the Battle of Plassey was the first major victory the company won in India. पहली मेजर विक्ट्री थी. उसके बाद एक तरह से फाउंडेशन जो थी, एक तरह से रूट जो थी, इंडिया में जम चुकी थी, बिकॉज बंगाल वाज अ वेरी बिग प्रोविंस एज वेल एज वेरी फर्टाइल प्रोविंस. और उसके बाद इनको ह्यूज रेवेन्यू भी मिला ऑन बिहाफ ऑफ मीर जफर. तो इट वाज फर्स्ट मेजर विक्ट्री एज वेल एज उसके बाद जो नवाब बने बंगाल के, दैट वर पपेट नवाब एक तरह से एक के बाद एस्टैब्लिश होते रहे. और इनको एंथ्रोन किसने करा? ईस्ट इंडिया कंपनी ने. आफ्टर एंड सिराजुद्दौला का क्या हुआ? सिराजुद्दौला वाज स्लेन बाय मीर जफर's son मीर मिरान. मीर मिरान ने उसको स्लेन कर दिया, मर्डर कर दिया. सिराजुद्दौला की एक तरह से स्टोरी खत्म हो गई. मीर जफर की अगर हम बात करते हैं, मीर जफर वाज गिवन द थ्रोन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी. सो अगर हम पहले से बोले, उसको हेल्प मिली थी ईस्ट इंडिया कंपनी का बाय टीचरी. ही बिकेम द नवाब. सो ही बिकेम अ पपेट नवाब. एक तरह से कठपुतली नवाब बना. जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी कहेगी उसको करना ही पड़ेगा. अब मीर जफर की अगर हम बात करें, ही वाज अ पपेट नवाब. ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि मैनी मीर जफर्स वुड बी देयर. एक मीर जफर हमें मिल गया, हमें इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ, इतना रेवेन्यू मिला. सो उनकी ग्रीड खत्म नहीं हुई. सो दे विदाउट एनी रीजन मीर जफर वाज डिथ्रोन्ड. उसको उसके नवाबशिप से हटा दिया गया. एंड मीर कासिम बिकेम द न्यू नवाब. अब इसमें भी हम देखे जाए तो मीर कासिम प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक ट्रीटी हो चुकी थी. इनके बीच में यही था कि मीर कासिम वुड गिव द प्रोविंस ऑफ बुर्दवान. मीर कासिम वुड गिव द province of Burdwan, Madinapur, Chatgaon to East India Company, plus huge revenue to the East India Company. And East India Company का कुछ भी नहीं लगा. They promised that they would install Mir Qasim as the new Nawab of Bengal.
तो ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी के को कुछ भी नहीं लेना पड़ रहा था, बदले में इनको सब कुछ मिल रहा था। एंड बंगाल को क्या हुआ था कुछ नहीं पता, वो सिंपल जो वहाँ की पब्लिक थी, दे वर द स्पेक्टेटर्स, क्या हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं था, इसलिए पपेट नवाब एक के बाद एक आते जा रहे हैं। So Mir Zafar was dethroned and Mir Qasim was enthroned on the throne of Bengal. Very interesting. Mir Qasim नवाब जरूर बनाते ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प से, बट ही वॉज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर. ही थॉट कि एज सून एज आई विल फुलफिल द प्रोमिसेस ईस्ट इंडिया कंपनी, मुझे एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ. सो ही ट्राई टू ऑर्गेनाइज द एडमिनिस्ट्रेशन, रिफॉर्म द एडमिनिस्ट्रेशन. It was not liked by the East India Company because they wanted a puppet Nawab. एक ये रीजन था, and main reason was misuse of dastak. Again, as already I have told you, dastak is the free passes given to the East India Company to carry duty-free trade in Bengal. But the servant of the East India Company also used to trade free of without giving any tax. जो उनका private trade था, servants का भी, East India Company के servants का भी, वो कर रहे थे without giving any taxes. Mir Qasim complained it to the company. The complaint was true, but they didn't do anything. So Mir Qasim was very annoyed और उसने जो अपने मर्चेंट्स थे, इंडियन मर्चेंट्स थे, उनको भी ट्रेड ड्यूटी फ्री करने की परमिशन दी. Now the Indian merchants also could trade duty free. मतलब they were not required to give any taxes which they earlier had given. अब ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजीशन बड़ी प्रिकॉर्स हो गई थी, न तो वो खुद रेवेन्यू देना चाह रहे थे, न उनको ये एग्री था कि इंडियन मर्चेंट्स भी ट्रेड टैक्स नहीं दे. हालांकि उनका कुछ नहीं जा रहा था, बट एक तरह से उनकी जो सुप्रीमेसी थी वो तो एक तरह से डाउन हो रही थी, बिकॉज नाउ द इंडियन मर्चेंट्स वाज एट पार विद द इंग्लिश मर्चेंट्स. सो इट वाज द मेन कॉन्फ्लिक्ट. और उनके बिफोर द फाइनल बैटल ऑफ बक्सर स्क्रैमिशेस हुआ, मतलब छुटपुट लड़ाई हुई, उसमें मीर कासिम फेस द डिफीट एंड ही फ्लैड टू अवध. इवेंट्स में मीर कासिम फ्लैड टू अवध. अब अवध में क्या हुआ? फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अवध में द मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड वॉज देयर, प्लस नवाब अवध भी होगा सुजाउद्दौला, और मीर कासिम वहां पे पहुंच चुके हैं. सो दे थ्री मेड एन अलायंस अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी. 3 पावर मिल चुकी है. मीर कासिम एसेस तो बंगाल अभी कोई पावर नहीं रही, बट अर्लियर ही वाज द नवाब ऑफ बंगाल. मीर कासिम प्लस शाह आलम सेकेंड प्लस द नवाब ऑफ बंगाल दैट इज सुजाउद्दौला मेड एन अलायंस अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी. अब इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई हुई थी वो अंडर द कमांड ऑफ मेजर मुनरो, हेक्टर मुनरो. Now the field was ready at the Battle of Buxar, 1764. The East India Company defeated Mir Qasim along with Shah Alam II and Sujaud. इन तीनों पावर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया. तो देखा जाए तो it was more significant than the Battle of Plassey, because Battle of Plassey was won by treachery. एक तरह से करप्शन के द्वारा, ये मान लो कि उन्होंने मिला लिया था मीर जफर को अपनी साइड, कॉस्टली उन्होंने बैटल जीत किया था. बट हियर अ बिगर पावर मेड एन अलायंस अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी. देयर वाज नो चीची, नो सीक्रेट अलायंस, बट देन आल्सो ईस्ट इंडिया कंपनी वन द फील्ड. एंड रिमेंबर बक्सर एंड प्लासी, both it is in Bengal. So significance was very great in comparison to Battle of Plassey. लेकिन Battle of Plassey was the first major victory. Had the Battle of Plassey not won by British East India Company, then there was no question of Battle of Buxar. But significance और destruction की बात की जाए, it was a destructive battle in comparison to Battle of Plassey. 500 soldiers from the side of East India Company was dead, and 2,000 soldiers from the side of Mir Qasim plus Shah Alam II and Sujaudullah were dead. The destruction भी बहुत great था in comparison to Battle of Plassey. Significance was very great because now एक तरह से उस समय foothold मिला था, foundation हुआ था. Now the whole of the Bengal came into the fold of East India Company along with Awadh. इसमें significance में हम पढ़ेंगे the Treaty of Allahabad.
in 1765. आज इस हिस्ट्री में आजकल डेट्स का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, बट जो मेजर डेट्स है वो हमें याद रखनी पड़ेगी. लाइक बैटल ऑफ प्लासी was fought in 1757, Battle of Buxar in 1764, and the Treaty of Allahabad was made in 1765. किस किसके बीच में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी विद शाह आलम सेकंड एंड नवाब अवध सजाउद्दौला. बिकॉज मीर कासिम भाग चुका था, मीर कासिम वाज फ्लैट, सो इन दोनों के साथ ट्रीटी करी थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने. अवध के साथ द प्रोविंस ऑफ खेड़ा एंड इलाहाबाद was taken from the Nawab of Awadh, and these two provinces was given to Shah Alam II, the Mughal emperor. Shah Alam II was very pleased with East India Company. He gave Diwani rights to East India Company of Bengal, Bihar, and Orissa. What is Diwani right? It is the right to collect revenue. तो right to collect revenue means एक तरह से मेन जो रेवेन्यू सोर्स था वो इस इंडिया कंपनी के पास आ चुका. सिग्निफिकेंस वाज वेरी ग्रेट of Battle of Buxar. And after the Battle of Buxar, the company appointed residents in Indian history. Means residents होता था कि नवाब में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तरह से ऑफिशियल मेंबर रहता था. नेचुरली अगर आप मेन दरबार में एक ऑफिस में रहेगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रेजिडेंट, तो the resident could interfere in the internal as well as external administration of the Nawab.